Dear students, today we study about the Atom Event class and Atom Listener Interface. So we start the session. Okay, so we just revise after end of this. So action event class we already studied. So super class of the action event is AWT event. The same for this atom event. The atom event is the subclass of the AWT event, and AWT event is the subclass of the event object. Okay, so this is the basic hierarchy of our the atom event. So we study in detail one. So basically, the atom event, uh, in which situation we use, or basically what are the sources of this atom event. The basic source is checkbox. Okay, so when we click the checkbox, is whether is selected or deselected, at that time the atom event will be occur. The same is choice. In the choice we generate the event when we select the choice. Then similarly the list is also a generate an atom event when the atom is selected or deselected. Then you just realize that ki, this atom event is active when we just click on the any atom, or it may be selected or deselected. The similarly on this also it can be used for the checkable मेनू आइटम. मेनू आइटम जब हम चेकेबल करते हैं तो जब उसको सेलेक्टेड और डिसेलेक्टेड करते हैं तो इन दिस सिचुएशन आइटम इवेंट कैन बी वर्क. So I think all of you knowing that when we use this atom event, first is checkbox, then second is choice, third is the list, and fourth one is the मेनू atom. चेकेबल मेनू एटम. मेनू एटम हमने देखा है, तो चेकेबल मेनू एटम का भी हम एग्जांपल जब देखेंगे तो यू इजीली अंडरस्टैंड. तो एटम इवेंट जो है बेसिकली इसके दो इंटीजर कांस्टेंट्स है. दो फर्स्ट इज द डी सेलेक्टेड एंड सेकंड वन इज द सेलेक्टेड. तो डी सेलेक्टेड कब यूज होता है? व्हेन यूजर डी सेलेक्टेड एन एटम. ओके, and selected, the user is selected an atom. So when each atom event is working in checkbox, check choice and list, so all of you easier understand what is the use of this atom event class. So we turn to the next one. Then what are the method are associated with this atom event class? The main it can be used the listener, that is the atom listener. Under this we can be use atom state changed methods. So basic method one is the first one is get atom. Okay, get atom method is used for the object. In this, we can be obtain the reference of the atom that is generated by an event. Okay, the second method is get atom selectable. Okay, when it is used for the atom selectable object, atom selectable class is used for this. So, get atom selectable is used when we use the reference of the selected atom that can be generated by an event. And the finally is the
Get state change. Okay, if you want a return whether your the state is changed or not, it is selected or deselected, at that time we can use the method get state change. It is the constant one, selected or deselected. So what are the methods of this atom event? First one is the basic one is the object get atom. Second one is the atom selectable get atom selectable, and third one is the int get state change. Okay, these three methods are available in the atom event class. So we turn to the next one, that is the what is the interface of this atom listener. तो इंटरफेस का जो मेथड है वो कौन सा है? एटम स्टेट चेंज्ड. In this, if whether the atom has changed the state, then and then only this atom state listener is activated by the method atom state change. So how to register it? Simple, object name dot add atom listener. So in bracket this. So we have to register the component with the listener. Then by using the standard method object name dot add atom listener in bracket this. And when you want to be implement this listener, then by using this atom implement atom listener. ओके अगर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करने वाले हैं? सिंपल, वी हैव टू जस्ट राइट द सिंटैक्स पब्लिक क्लास नेम एक्सटेंड्स एप्लेट इम्प्लीमेंट्स एटम लिसनर. तो ये हम अभी तक देखे हैं और एक जस्ट सिंपल ओवरव्यू हम एक बार देखेंगे. तो यहाँ पे पैकेज java.util, we use the object get source और टू स्ट्रिंग. तो यहाँ पे और एक हमारा नया आइटम आ गया ऑब्जेक्ट गेट एटम. तो एटम इवेंट में का जो मेथड है गेट एटम, एटम सेलेक्टेबल गेट एटम सेलेक्टेबल, गेट स्टेट चेंज हमने अभी देखा है. और एटम लिसनर इंटरफेस का जो इवेंट है वो कौन सा है, मेथड कौन सा है? एटम स्टेट चेंज्ड. और फाइनली वन अनदर class, that is the awt event, is available in the java.awt package, and to find the type of the event we use the get id also. Means it is the hierarchy. So which one is the package, which one is the class, which is the method, what is their use. So if you understand all these things, then we turn to the next one, program. Okay, so हम आज एक प्रोग्राम देखेंगे. जैसे हम 3 प्रोग्राम देखने वाले हैं, बट डिपेंड ऑन द टाइम कंस्ट्रेंट वी यू मेक द प्रैक्टिस ऑफ दिस प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्राम अगर देखना है तो उसके लिए पहले आपको सब स्टेप्स आपको इजीली रीडेबल होने चाहिए. तो ये जो हमारा पहला प्रोग्राम है इसमें हम 4 चेक बॉक्स देने वाले हैं. और यहाँ पे उसका जो है करंट स्टेट क्या है, वेदर इट इज द सेलेक्टेड और डीसेलेक्टेड, ये हम देने वाले. उसके बाद में हम दूसरा प्रोग्राम देखने वाले रेडियो बटन. और वेदर रेडियो बटन मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन. check box is selected all the atoms, and radio button we have to only select the one. तो ओनली डिफरेंस इतना ही है. और तीसरा जो है हम एक यहाँ पे चॉइस कंट्रोल यूज़ करने वाले. तो भी हम जो भी चॉइस सेलेक्ट करेंगे तो उसका डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आना चाहिए. मीन्स यू गेट द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ आवर द चॉइस कंट्रोल. ये हम 3 प्रोग्राम देखने वाले हैं. तो हम देखते हैं कि हमारे प्रोग्रामिंग अगर करना है तो बेसिकली हमने पहले देखा था कि कौन सा कंट्रोल है, उसके कंस्ट्रक्टर क्या है, उसके मेथड्स कौन से है. तो अगर आपको ये इजीली रिवाइज होते हैं, जैसे हम पहले
चैप्टर में देखा था कि अगर चेक बॉक्स कंट्रोल है तो उसका जो मेथड है या उसका अगर हमको उसका जो स्टेट कौन सा है ये देखना है तो हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं, गेट स्टेट। ओके, तो हमारा जो भी मेथड है, जो भी प्रोग्राम है, उसके रिलेटेड हमारा मेथड कौन सा यूज़ होने वाला है, गेट स्टेट। अब जैसे कि हम रेडियो बटन यूज़ करने वाले, हमने जो भी चेक बॉक्स को सेलेक्टेड किया है तो उसका अगर हमको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए या तो उसके रिलेटेड मेथड कौन सा है हमारा, गेट सेलेक्टेड चेक बॉक्स। तो ये आपको एक बार इजीली कौन सा मेथड है, कौन से चेक बॉक्स कौन से क्लास के लिए, तो ये एक बार आपको रिवाइज होना चाहिए। अब उसके बाद में हम और एक चॉइस भी देखने वाले हैं और लास्ट में एक लिस्ट है। तो चॉइस और लिस्ट में फ़र्क क्या है कि चॉइस में हम ओनली वी हैव टू यूज़ द ड्रॉप डाउन लिस्ट, मीन्स ओनली यू हैव टू सेलेक्टेड अ सिंगल आइटम। तो यहाँ पे हमारा अगर आइटम हमको देखना है कि कौन सा आइटम हमने सेलेक्ट किए है तो उसके रिलेटेड मेथड कौन सा है, गेट सेलेक्टेड आइटम। ओके, तो अगर हमको एक साथ सभी आइटम सेलेक्ट करने हैं तो उसके रिलेटेड हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा और ये लिस्ट हम बटन में यूज़ करने वाले हैं। उसका एक्शन इवेंट ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन करना है तो उसके रिलेटेड हमको यहाँ पे एरे यूज़ करना पड़ता है लिस्ट में। तो बेसिक प्रोग्रामिंग अगर करना है तो सिर्फ लॉजिक होके भी नहीं आपको चलेगा कि आपको बेसिकली क्या होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज़ द क्लास, व्हाट आर द मेथड्स associated with this class. If you can be understand all these things, then you first what are the steps of the our programming, then you can be easily create the program. So checkbox, it is the multiple choice, radio button single choice is single selection एंड लिस्ट इज द मल्टीपल सिलेक्शन। ये बेसिकली आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा मेथड गेट स्टेट, गेट सेलेक्टेड चेक बॉक्स, गेट सेलेक्टेड एटम, ये हमारा मेथड है। तो हम प्रोग्रामिंग के लिए देखते हैं, प्रोग्रामिंग थोड़ा सा क्या है हम उसमें देखेंगे। तो प्रोग्रामिंग के अगर करना है तो फर्स्ट आई ओपन द नोटपैड और मैं यहाँ पे जो भी प्रोग्राम है हमारा वो यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। ओके, दिस वन इज़ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैं पहले सिंपल विंडो ड्रॉ करूँगा, विंडो का स्क्रीन, और देन आई गो टू द फाइनल इवेंट हैंडलिंग टास्क। तो यहाँ पे मैं प्रोग्रामिंग शुरू करता हूँ। यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप्स है इट इज द import the package with the event handling। यहाँ पे ऑलरेडी पैकेज मेंशन किए हैं AWT एप्लेट एंड इवेंट। मैंने जो क्लास यूज किया है उस क्लास का नाम है एटम इवेंट डेमो। ऑलरेडी आई सेव दिस फाइल by using the .java and here is .class. Okay, I create the class atom event demo. Okay, अब यहाँ पे तो मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। मैं यहाँ इम्प्लीमेंट अगर हमको एटम इवेंट के बारे में करना है तो मैं यहाँ पे मेरा इम्प्लीमेंट कौन सा है, एटम लिस्नर। ओके, तो सिंपल वन मैं प्रोग्रामिंग शुरुआत करता हूँ। तो पहले आई क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे मैं दो ही ऑब्जेक्ट के बारे में प्रोग्रामिंग लिखूंगा। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट
नेम, ऑब्जेक्ट नेम कौन से है, अभी 4 है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ, 2 पे ही प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, शायद चारों। देन इनिशियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसको वैल्यू सेट करना है, वैल्यू सेट करेंगे। यहाँ पे ओके, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, तो उसके बाद का स्टेप जो है, ऐड द कंपोनेंट इनटू द विंडो। तो यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है वो मेरे को ऐड करना है। ओके, आई ऐड ऑल द कंपोनेंट्स। उसके बाद में आई वांट टू बी रजिस्टर द कंपोनेंट विद द लिसनर। अब हमारा लिसनर कौन सा है, एटम लिसनर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए मेरा सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऐड एटम लिसनर इन ब्रैकेट दिस। तो मैं यहाँ पे एक पहला कौन सा है मेरा, डॉट ऐड एटम लिसनर इन ब्रैकेट दिस। ठीक है, मैं कॉपी करता हूँ, तो मेरा जो भी है 4, यहाँ पे पहला मेरा कौन सा है, विंडोज 98।
Okay, so all the atoms. Then what are the steps? What is the event? Which event we use for this atom listener? मेरा मेथड कौन सा है? Public void atom state changed atom event. Okay, यहाँ तक मेरा प्रोग्रामिंग हो गया है. मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक मैसेज में मेरे को डिस्प्ले क्या करना है. मेरा मैसेज जो है तो यहाँ पे पहला 100 मैं यहाँ पे इसको देता हूँ 120. यहाँ पे मैं देता हूँ 140. ओके, तो यहाँ पे मेरा जो है पहला विंडोज 98 विंडोज NT 2000 सोलारिस. ठीक है, तो मैंने एक ब्राउज़र पे जो भी मेरे को डिस्प्ले करना है, विंडोज़ 98 का स्टेटस क्या है, NT का क्या है, सोलारिस का क्या है, या मैक OS का क्या है, with the help of this message string मैं copy the message
Windows 98 in one string, and that part is displayed through the drawstring. Okay, so the current status जो भी है उसका हमको दिखना चाहिए, तो उसका प्रोग्रामिंग हमने अभी तक नहीं किया है. तो सिंपल, I just check whether my program is corrected or not. So मैं रन करके देखता हूँ what happens. Okay, तो थोड़ा सा क्लास okay, so there is a no error. Okay, so you get the output in this way. Okay, यहाँ पे जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, कुछ दिखता है स्क्रीन पे, कोई भी मेरे को कर स्टेट कुछ चेंज भी नहीं हो रहा है. विंडोज 98 इट्स ट्रू और फॉल्स, ये मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो आई वांट टू बी चेंज एग्जैक्टली स्टेट एंड देन आई गेट द रिजल्ट. तो मैंने इसके ऊपर किया है, तो इसके लिए फर्स्ट आई जस्ट यूज द रिपेंट मेथड. रिपेंट मेथड मीन्स it is the method is used when you can be overwrite your output on the screen. Okay, so then हमारा स्टेट चेंज होना चाहिए. तो मैंने पहले ही बोला है कि आपको मेथड जो भी है वो आपका मेथड कौन सा है, गेट स्टेट. अब हम जब चेंज करने वाले तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडोज एक्सपी के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, या विंडोज एनटी के लिए हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडोज 98. ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, विन 98. मैं ऑब्जेक्ट नेम कॉपी करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट नेम कौन सा है, विन 98. तो हमको ये मैसेज में उसको हम प्लस करेंगे. Okay, so in this similar way I copy this text for Windows NT also, then copy this text for Solaris also, and then copy this text for 90 also. तो ऑब्जेक्ट भी मैं कॉपी करता हूँ. तो पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, विंडोज NT. then
program run this program and check for this output. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट आप देख सकते हो कि इसमें स्पेस नहीं है, तो हम थोड़ा स्पेस ऐड करते हैं। स्पेस के लिए हमको स्पेस देंगे हम। तो सिंपली आपका आउटपुट है, क्लिक करो। अभी इनिशियल स्टेट क्या है, सब फॉल्स। इनिशियल स्टेट कौन सा है, फॉल्स। तो आप क्लिक करिए तो विंडोज एक्सपी क्या हो गया, ट्रू। एंटी ट्रू, सोलारिस ट्रू, मैक ओएस ट्रू। इन दिस वे और प्रोग्राम फॉर द, ये हमारा प्रोग्राम होने के बाद हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और ये